So yesterday I told you about gravitational force formula, right? So in the gravitational force formula here, G is a constant and it is called gravitational constant, okay, and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square, okay, and capital G is called universal gravitational constant, okay. And now we will find the unit of G, the Newton meter square per kilogram square, okay, the how the unit is come, okay. So we know that the formula of G from the force formula after the cross multiplication, G is equal to Fd square upon mm. So unit of F is Newton, unit of D is meter, unit of m is kilogram, and m is also kilogram, so kilogram into kilogram square. So the unit will be, therefore the unit will be Newton meter square per kilogram square, okay. That's why I wrote here. So now we will find the relation between Newton's third law of motion and Newton's law of gravitation. So first of all, let's know the what is the Newton's third law. Okay, so according to the Newton's third law of motion, what happens? Every object exert equal and opposite force on other object, but in the opposite direction. It means जो जितने भी objects होते हैं ना, वो other objects पर opposite direction में ना equal and opposite force exert करते हैं. Okay, this is the third law of Newton. And now we will know the Newton's gravitational law. So what is in law? So according to this law, every mass in the universe attracts the every other mass. It means universe में जितने भी मास होते हैं ना, every mass वो attract करते हैं every other mass, जो जितने भी दूसरे other mass होते हैं, okay. Means दो object attract करते हैं to each other. In the case of freely falling stone, freely falling वाला जो मैंने आपको केस बताया था, जो fall होता है, freely fall करते हैं हम stone को earth के towards. So it means stone is attracted towards earth. Means stone जो है वो attract करता है earth को. It means जो stone को हम freely fall कर देंगे तो जो stone है वो earth की towards, earth की side में क्या बिल्कुल fall हो जाएगा. It means क्या है, earth means stone को attract कर रही है, pull कर रही है ना अपनी side. Okay, but according to the Newton's third law of motion, the stone should also attract the earth. न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन जो लॉ होता है ना, कि अर्थ अगर अट्रैक्ट कर रही है तो स्टोन को भी अट्रैक्ट करना चाहिए अर्थ को, राइट. बट इट इज़ ट्रू, ओके, ये ट्रू भी है दैट स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ. ये ट्रू है ना, ये होना चाहिए ऐसा, एंड ये ट्रू भी है, ओके. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट स्टोन जो है ना वो अट्रैक्ट करता है अर्थ को, ओके, विद द सेम फोर्स, मतलब सेम फोर्स के साथ ही वो अटैक करता है, दैट इज F इज इक्वल टू ma फोर्स, ओके. बट ड्यू टू वेरी लेस मास ऑफ द स्टोन, जो स्टोन है ना उसका बहुत लेस मास होता है. स्टोन का जो मास है ना, जब उसे फॉल करेंगे तो वो बहुत कम हो जाता है, लेस. तो ड्यू टू लेस मास ऑफ द स्टोन, द एक्सलेरेशन इन इट्स वेलोसिटी, इसकी स्टोन की जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की में जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगी उसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ओके. एंड एक्सलेरेशन ए ऑफ द अर्थ टुवार्ड स्टोन, मीन्स जो अर्थ है ना उसकी एक्सलेरेशन क्या होगी स्टोन के टुवार्ड्स में, दैट इज़ 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट विच इज़ नेग्लिजिबल, ओके, जिसे हम नहीं मान सकते हैं, एंड वी कैन नॉट फील इट ऑल्सो, ओके. एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके. So what is the importance? So the force that binds us to the earth, means जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं ना, अर्थ की साइड में, मतलब हम अर्थ पे खड़े होकर गिरते नहीं है, राइट. तो अर्थ की ओर हमें जो बांधे रखता है ना, जो फोर्स, मीन्स द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मीन्स जो मून है वो अर्थ के अराउंड में मोशन करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मीन्स जो अर्थ है वो सन के अराउंड में मोशन करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, मीन्स जो मून एंड सन से जो टाइड्स होते हैं ना, ओके, जो वाटर में ऊंचे मतलब वाटरफॉल टाइप के होते हैं टाइड्स, ओके. तो ये जो होते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. अंडरस्टूड?